بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بچوں کو خسرہ روبیلا اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سی ڈی ایف اسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں نمائندہ 5 نیوز جبران خان اپنی اس رپورٹ میں۔ سی ڈی ایف ہاسپٹل میں 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے سلسلے میں ایم ایس سی ڈی ایف ہاسپٹل ڈاکٹر مینا کماری کی سربراہی میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور محکمہ صحت کے ملازمین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مینا کماری کا کہنا تھا کہ والدین اپنی 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو اس مہم میں ٹیکے ضرور لگوائیں۔ میں ڈاکٹر مینا ایم ایس سی ڈی ایف ہاسپٹل 17 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک خسرہ روبیلا کی مہم اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں حیدرآباد کے تمام والدین کو گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک ہیں ان کو خسرہ اور روبے کے ٹیکے لگائیں، اور جو پیدائش سے لے کے 5 سال تک 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ ہم ان تمام موذی مرضوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے۔ اور میں آپ سب کی تعاون کی طلبگار ہوں۔ ہمارے فکس پوائنٹ بھی ہیں اور جو ٹیمیں ہماری آئیں گی آپ کے گھروں تک، ان کے ساتھ آپ اچھا ان کو ویلکم کریں، اپنے بچوں کو یہ ٹیکے ضرور لگوائیں۔ 17 سے 29 نومبر تک جاری رہنے والی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ ادھر دادو میں محکمہ تعلیم کے اندر ہونے والی بڑی جعلسازی بے نقاب ہو گئی ہے، جہاں میاں بیوی کو نہ صرف غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا بلکہ پروموشن بھی قواعد و ضوابط کے برخلاف دیے گئے۔ چینل 5 نیوز نے اس کرپشن اسکینڈل کے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے ہیں، جبکہ اینٹی کرپشن حکام نے دونوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ غزالہ چانڈیو کو سن 2002 میں اس وقت بھرتی کیا گیا جب عربی ٹیچرز کی بھرتیوں پر پابندی آئی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق غزالہ چانڈیو نے 2010 تک غیر قانونی طور پر تنخواہیں بھی وصول کی۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ غزالہ چانڈیو کے شوہر غلام عباس چانڈیو نے بھی جعلسازی کے ذریعے صرف 5 ماہ میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے کی ترقی بھی حاصل کر لی تھی۔ غیر قانونی بھرتیوں اور پروموشنز کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک محکمہ تعلیم میں جاری رہا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے اینٹی کرپشن نے دونوں میاں بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ منڈی بہاؤالدین میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن صحت مند پنجاب اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق فوڈ اسٹریٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے فیتا کاٹ کر کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے کہا کہ منڈی بہاؤالدین شہر کے وسط میں قائم یہ فوڈ اسٹریٹ پنجاب حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ اب شہریوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فوڈ اسٹریٹ میں معیاری، بہترین اور لذیذ کھانے دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام فوڈ اسٹریٹ کو جدید طرز پر بنایا گیا ہے، جہاں شہریوں کو بہترین کھانے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی فوڈ اسٹریٹ کے کھانوں کا باقاعدہ معائنہ کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کم عرصے میں فوڈ اسٹریٹ کے قیام پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی رضوان بشیر آغا کی محنت اور کام قابل تعریف ہے۔ صادق آباد میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شہری ناک، گلے اور کان کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں روزانہ ناک، کان، گلے کے مریضوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے۔ ناک، کان، گلے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشم منیر یہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہمارے پاس روزانہ 150 سے 200 مریض آ رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملک طلحہ سے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں صادق آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو ہے ناک، کان، گلے کے مریضوں کی تعداد میں جو ہے کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی والے سے ہم بات کریں گے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشم منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہی زیادہ تر ناک، کان اور گلے کے مریضوں کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھ رہے ہیں، تو شہریوں کو کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے؟ سر، شہریوں کو ہم جو زیادہ نزلے، زکام، کھانسی کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو یہی احتیاط بتاتے ہیں کہ سادہ نیم گرم پانی کی بھاپ لیں اور گرم کہوے کا استعمال کریں، غیر ضروری بازاری کھانوں سے پرہیز کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار زیادہ نہ آ سکے۔ لوگ خشک کھانسی کے ساتھ آتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرنا پھر اتنے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پراپر اپنی بیماری کو بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور نزلے کا بھی یہی حل ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم ڈسٹ، مٹی اور موسمی آلودگی سے بچ سکیں۔
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि शहरियों को चाहिए कि सर्दियों के दिनों में जो है वो बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ किया जाए, नीम गर्म पानी की जो है भाप ली जाए और मास्क का इस्तेमाल जो है लाजमी किया जाए। जी। सियालकोट में नाकिस और मुजरे सेहत खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। शहर इकबाल के शहरियों की सेहत को महफूज रखने के लिए क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फूड यूनिट्स की चेकिंग करते हुए भारी जुर्माने और एक्सपायर अशिया तल्फ की। डिप्टी डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर टीमों ने डस्का, संबड़ियाल और सिटी एरिया में सख्त एक्शन लिया। चेकिंग के दौरान प्रोसेसिंग और किचन एरिया में मक्खियां, गंदगी, टूटे फ्रीजर में गोश्त और डेयरी अशिया एक साथ मौजूद पाए गए। मुतादिद फूड पॉइंट्स पर मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत अहम रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। तर्जुमान के मुताबिक जिला भर में मैरिज हॉल्स, बड़े और छोटे फूड पॉइंट्स की चेकिंग जारी है और मुजरे सेहत खुराक तैयार या फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। उनका कहना था कि बच्चों और बूढ़ों की सेहत से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल जारी है और ऐसे लोगों की पंजाब में कोई जगह नहीं। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि खुराक के मुताल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में फौरन हेल्पलाइन पर इत्तला दें। मुल्तान में तेज रफ्तार कार रेसिंग के बायस होने वाला हौलनाक हादसा। बहादुरपुर मेट्रो स्टेशन के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार दो सगे भाई जान बहक जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा मुलजिम ताहल फरार है। पुलिस के मुताबिक कार रेसिंग में मुलव्वस मुलजमान MDA चौक मुल्तान के रिहायशी हैं जिनका ताल्लुक खान बरादरी से है। पुलिस ने एक ड्राइवर शामिर को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा मुलजिम शमीर खान मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तहकीकात के मुताबिक जान बहक नौजवानों का ताल्लुक खानेवाल से था और वो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़ेरे तालीम थे। मज़ीद खबर बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नवंबर का महीना तलबा के लिए मनाया जाता है। कसूर में भी नवंबर में तलबा दिन को मनाने का मकसद तलबा में शऊर उजागर करना और तालीम की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कसूर में भी 17 नवंबर तलबा का आलमी दिन के हवाले से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद तलबा में आगाही, शऊर और इनके तालीमी मसाइल को उजागर करना है। ये आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि कौमों की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। इस मौका पर तलबा ने कहा कि इनके लिए स्कॉलरशिप्स, जदीद लैब्स और स्पोर्ट्स सहूलियात बहुत जरूरी हैं। के हवाले से मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि वो तालीमी अदारों को बेहतरीन सहूलियात और लैब्स वगैरह फराहम करें ताकि तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ सके। नौजवान नस्ल ही किसी भी मुल्क का असल सरमाया होती है। कसूर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आलमी तलबा के दिन की आगाही भी दी गई, जहाँ तलबा ने अपने ख्यालात और मुस्तकबिल के अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि आज का दिन हमें सीखने, बढ़ने और अपने मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी की अहमियत बताता है। का दिन हमें पढ़ने, लिखने, सीखने और तालीम की बेहतरीन मनसूबाबंदी को बयान करने की अहमियत बताता है। मैं चाहता हूँ कि कसूर के अंदर तालीमी निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। ये दिन हमें ये एहसास दिलाता है कि नौजवान नस्ल की रहनुमाई और तरबियत हमारा फ़र्ज़ है। असातिज़ा का तलबा के आलमी दिन पर कहना था कि तालीम ही तरक्की की वाहिद कुंजी है। पेशे के लिहाज से मैं उस्ताद हूँ, लेकिन मैं ये इस दिन की मुनासबत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कसूर शहर में तलबा के अंदर तालीम का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इन तलबा को एक मुनासिब माहौल फराहम किया जाए तो ये तालीम के मैदान में बड़ी अच्छी कारकर्दगी और बड़ा अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आलमी तलबा का दिन जहाँ दुनिया भर में तालीम की अहमियत पैगाम देता है, वहीं कसूर के नौजवान भी इस जोश और उम्मीद के साथ इस दिन को मना रहे हैं कि इन्हें बेहतर सहूलियात, महफूज तालीमी माहौल और रोशन मुस्तकबिल के ज़्यादा मौके मुयस्सर होंगे। तालीम जीने का करीना सिखाती, तालीम बाइस है इंसानी खिलाफत, तालीम वजह है कौमों की तरक्की का, अलगर्ज के तालीम ही कौमी तरक्की और कौमी तंजली का बाइस। तालीम हर तरक्की की बुनियाद है और हमारे हुक्मरान इस आलमी दिन पर हुकूमती सतह पर भी मुस्बत इक़दामात करेंगे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। जैकबाबाद में वकला बरादरी ने कराची बार एसोसिएशन के सदर और सिंध बार काउंसिल के मेंबर एडवोकेट आमिर वड़ाइच का शानदार इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब में आमिर वड़ाइच और दीगर वकला रहनुमाओं ने मुल्की अदालती निज़ाम, आइन की बालादस्ती और 27वीं तरमीम के मामले पर अहम मौक़िफ़ पेश किया।
कराची बार के सदर और सिंध बार काउंसिल के मेंबर एडवोकेट आमिर वड़ाइच जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट बार पहुंचे तो वकला बरादरी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में आमिर वड़ाइच ने कहा कि अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और वकला के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बार काउंसिल की मजबूती से मशरूत है। उन्होंने ये जोर दिया कि 27 तरमीम के मामले पर वकला बरादरी को मुत्तहिद होकर आइनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखना होगी। आमिर वड़ाइच का कहना था कि सिंध बार और कराची बार मुल्क भर की बार्स के साथ खड़ी हैं और वकला के मसाइल हर फोरम पर भरपूर अंदाज में उठाए जाएंगे। पाकपतन में फलाही तंजीम ने जिला इंतजामिया के ताउन से सैलाब मुतासरीन में 750 खानदानों में राशन तकसीम किया। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। मुस्तहिक अफराद की मदद और इंसानियत की खिदमत का एहसास। पाकपतन में फलाही तंजीम के कंट्री हेड सैयद शाहिद नदीम, समाजी रहनुमा इमरान ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के हमरा 750 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया। 1.5-2 महीने पहले जो यहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई थी, यहाँ पे पाकपतन का इलाका है। आज भी हम तकरीबन कुछ 750 फैमिलीज को हमने जो है ना यहाँ पर राशन प्रोवाइड किया है। ये राशन माशाल्लाह इतना था कि तकरीबन ये 2 महीने का जो है ना आराम से जो है गुजारा कर सकते हैं। राशन लेने वालों में सैलाब मुतासरीन बेवा खवातीन और मुस्तहिक खानदान शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने समाजी तंजीम की काविश को सराहा। डिजर्विंग लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाई और यहाँ पे हम लोगों को एक माह का राशन दे रहे हैं। आज से 1 माह पहले पानी था और सैलाब की तबाहकारियाँ थी और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी लोगों को बहाल करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। महीने भर का राशन मिलने पर मुस्तहिकीन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त राशन की दस्तयाबी किसी नेमत से कम नहीं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। कंदकोट में सिंध हाई बार इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में कराची बार के सदर एडवोकेट आमिर नवाज वड़ाइच ने डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा किया, जहां वकला बरादरी की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मुल्क की मौजूदा आइनी सूरत हाल, 27वीं आइनी तरमीम समेत अहम कौमी उमूर पर खुलकर गुफ्तगू की गई। तकरीब से खिताब करते हुए आमिर वड़ाइच ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम मफाद परस्त टोले की साजिश है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरमीम की वापसी तक उनकी तहरीक जारी रहेगी और खामोश रहना मुमकिन नहीं। आमिर वड़ाइच का कहना था कि सिंध के बाशऊर अवाम इस तरमीम के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनकर सामने आएंगे। उन्होंने 28वीं तरमीम पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध को 3 सूबों में तकसीम करने की इत्तलात इंतहाई खतरनाक है। आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि सियासतदान सिर्फ दस्तखत करते हैं, फैसले कहीं और होते हैं और अवाम हकीकत से लाइल्म रहते हैं। रोशन भेला गांव कसूर का एक मिसाली गांव है जो अपनी खूबसूरती, सहूलियात और तज़यीन और आइश के लिहाज से शोहरत रखता है। ये गांव कसूर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है और अपनी कुशादा सड़कों, खूबसूरत ग्राउंड्स और पब्लिक पार्क की वजह से मशहूर है। मजीद ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट में देखते हैं। कसूर का गांव रोशन भीला हरियाली, खूबसूरती, शानदार लाइब्रेरी, अस्पताल, पार्क और बुजुर्गों की यादगार चौपाल। ये पंजाब का पहला मॉडल विलेज की तर्ज पर बनाया गया गांव जहां दही जिंदगी का रंग तरक्की याफ्ता ममालिक से बढ़कर है। गोल दायरों में बनी चौपाल जिसमें पंजाबी सकाफत झलकती है, जहां बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठे बैठकर अपनी सकाफत से रिश्ता जोड़े खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। ये हमारे गांव का पार्क है और हम यहाँ चौपाल में बैठे हैं। यहाँ शाम के वक्त औरतें, बूढ़े, बच्चे सब एक दूसरे से दुख सुख साझा करते हैं और एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा माहौल बनता है। गांव का मॉडल फैमिली पार्क बच्चों के लिए झूलों से मज़ीन, लोगों के लिए वॉक ट्रैक, एक्सरसाइज टूल्स, पालतू जानवरों का ट्रैक देहात के माहौल को 4 चांद लगाता है, जहां हर उम्र के अफराद मुसर्रत महसूस करते हैं। हम स्कूल की छुट्टी के बाद इधर आते हैं, खेलते हैं, पालतू जानवर देखते हैं, बड़ा मजा आता है। गाँव रोशन भीला में पंजाब की सबसे बड़ी दही पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग भी है, मगर यहाँ इल्म, अदब और शऊर का चिराग न जल सका। शहरियों का कहना है कि इसकी खूबसूरत इमारत को ग्रहण लगने की मानिंद है जो बंद है। गांव में करोड़ों रुपए लगाकर लाइब्रेरी तैयार की गई है जो अभी तक ताला लगा हुआ है और कीमती किताबें इधर
रखी जाए और गांव के लोग इससे मुतासर हो, और हुकूमत से अपील है कि इसे खोला जाए। साफ सुथरी पक्की सड़कें, जदीद रेलवे स्टेशन, स्टेडियम और THQ म्यार के अस्पताल में सेहत की तमाम सहूलियात आज किसी ख्वाब से कम नहीं। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट का एक बड़ा स्टेडियम सेहत की सरगर्मियों का मस्कन है। यहाँ पे बहुत अच्छी पार्क है, झूले हैं बच्चों के लिए और जानवर हैं, पालतू जानवर, और यहाँ पे स्टेडियम भी है बच्चों के खेलने के लिए, और बहुत अच्छा निज़ाम है। ऐसा निज़ाम कसूर शहर में भी नहीं है। शहर से कई किलोमीटर दूर रोशन भीला एक ऐसा मॉडल विलेज जो सिर्फ सहूलियात का नहीं, सोच का इनकलाब है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। शेखुपुरा में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर यह मुहिम जिले की तमाम 112 यूनियन कौंसल्स और 5 तहसीलों में जारी है। शरकपुर शरीफ तहसील और फिरोजवाला की 14 यूनियन कौंसल्स में पोलियो वैक्सीन भी साथ में दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती टीके लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली, CEO हेल्थ MS समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि वो बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए लाजमी वैक्सीन लगवाएं। ये वही महफूज वैक्सीन है जो बच्चों को 9 और 15 माह की उम्र में पहले भी दी जाती है। कसूर ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही से मुख्तलिफ चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बन गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इसी तरह दीपालपुर रोड पर बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले इंतहाई ओवरलोड होकर सारी सड़क को ब्लॉक करके ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कसूर ट्रैफिक पुलिस की गफलत और अदम तवज्जही के बायस शहर के अहम चौकों DHQ चौक, कमाल चिश्ती चौक, चांदनी चौक और नूर महल चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। रिक्शा ड्राइवरों की मनमानियां, ट्रैफिक पुलिस का मौके से गायब रहना और कवानीन की अदम पासदारी शहरियों के लिए शदीद अजियत का बाइस बन रही है। दीपालपुर रोड पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉले सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करके ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर कार्रवाई न होने के बायस सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अपील की कि ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए फौरी नोटिस लिया जाए। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी बढ़ गई है, जबकि शहरी कीमतों में इजाफे पर परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद जान लेते हैं आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर शहरियों की आमदोरफ्त बढ़ गई है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों के अलावा शाहराहों पर मौजूद रेडी बान और स्टॉल मालकान भी अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात फरोख्त कर रहे हैं। सर्दियों के आगाज पर ड्राई फ्रूट्स की तलब में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। कीमतों के हवाले से शहरियों का कहना है कि अखरोट, बादाम, काजू और दीगर मेवाजात के रेट्स गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा हो गए हैं। कीमतें पिछले साल की निस्बत काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स लेने पड़ते हैं, बस रेट्स मुनासिब होने चाहिए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ड्राई फ्रूट्स की कीमतों की बाकायदा निगरानी करे ताकि अवामी मुश्किलात कम हो सके। खरीदारों का कहना है कि कुदरती मेवाजात की मुनासिब कीमतें, ताजगी और मयार को यकीनी बनाना जरूरी है ताकि खरीदारी का लुत्फ बरकरार रहे। उधर दुकानदारों ने बताया है कि ड्राई फ्रूट्स उन्हें पहले से ही महंगे मिल रहे हैं, जिसके बायस वो सस्ते दामों फरोख्त करने से कासर है। जितना हो सके कम रेट पर बेच रहे हैं, माल महंगा मिलता है तो कीमतें भी कुछ ऊपर जाती हैं, मगर कोशिश है कि मियारी चीज ही दें अवाम को। दुकानदारों के मुताबिक बढ़ती हुई खरीदारी के साथ कीमतों में उतार चढ़ाव भी बरकरार है, जिसका बराह रास्त असर मार्केट पर पड़ता है। सर्दियों की आमद के साथ फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की खरीदारी में इजाफा तो हो गया है, मगर शहरियों को कीमतें ज्यादा और मेयार मुख्तलिफ होने की शिकायत भी है। प्राइस कंट्रोल हकाम अगर बाकायदा चेकिंग करे तो रेट्स में वाज़ेह बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद।
डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटला का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी, तालीमी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ क्लासरूम्स में जाकर बच्चों से सवाल जवाब के सेशन भी किए और लेक्चर भी दिए। 8वीं क्लास की टीचर की गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जबकि हेड टीचर को इंतजामी उमूर बेहतर करने के लिए जवाब तलबी का नोटिस भी दिया गया। अख्तर राव ने गवर्नमेंट स्कूल के दौरे पर कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गैर हाजिरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हम्माद यूसुफ, CEO हेल्थ डॉक्टर रुहेल अख्तर, CEO जिला कौंसल आमिर अख्तर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर हाजिरी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जड़ावाला ज़िमनी इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला 23 नवंबर को होगा। उम्मीदवारों की जानिब से जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी के भाई सेनेटर तलाल बदर चौधरी के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। वाला में 96 में जो इलेक्शन होने ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी तैयारियां रोज पे उम्मीदवारों ने जलसे और कार्य मीटिंग का इनकार कर दिया। इससे मैं पिंजन युवा में एक कार्य मीटिंग में मौजूद हूँ। मेरे साथ नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके भाई सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद आए हैं। हमसे पूछे सर बताइएगा कि सियासी पार्टी का कोई उम्मीदवार आपके मुकाबले नहीं है, तो क्या समझते हैं कि आप सीट विन कर चुके हैं या कोई उम्मीदवार है आपके मुकाबले? देखिए जड़ावाला के लोग जो भी फैसला करेंगे उसे वो हम हमेशा उसे कबूल करते हैं। वो हमारे हक में हो या किसी दूसरी पार्टी के, दूसरी पार्टी नहीं खड़ी ये तो वो बताएंगे कि वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। वही पार्टी KPK में ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही लेकिन पंजाब में हिस्सा नहीं ले रही, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि दोहरा म्यार क्यों है। हम तो कोई भी आज़ादाना इलेक्शन हो रहा है, हर एक को खड़े होने की आज़ादी है। बाकी जड़ावाला का जो रिस्पॉन्स है, जिस तरह दोस्त अहबाब बरादरियाँ कादावर शख्सियात साबिक MP MNA इस वक्त मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बिलाल के साथ हैं, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ और इस बड़ी तादाद में इस तरह जो सपोर्ट है वो कभी किसी और उम्मीदवार को नहीं मिली। इंशाल्लाह ताला जो वोट सपोर्ट मिलेगी हम भी उसका रिस्पांस जो है वो अब काम से देंगे, इन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर के देंगे। जैसा कि हमने सुना है कि सेनेटर तलाल चौधरी साहब का कहना है कि जो उम्मीदवार है जड़ावाला में भिन्न कार्य जो हमारे तरीके से काम ये पूरे करवाएंगे। जी बुरेवाला के करीब पुलिस की CCD टीम ने संगीन जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले के दौरान इश्तिहारी डाकू कमरुज़्ज़मान अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार अंसर अली और हलाक मुल्जिम की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग के तबादले के दौरान इश्तिहारी कमरुज़्ज़मान अपने ही साथी की गोली से हलाक हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार अंसर अली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हलाक मुल्जिम की लाश भी अस्पताल पहुंचाई गई। पुलिस के मुताबिक कमरुज़्ज़मान और उसके भाई मुतादिद संगीन जराइम में मुलविस थे और पहले भी पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। CCD ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कसूर साफ पानी की फरहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत इंतहाई नाक़िस हो चुकी है। बेशतर प्लांट्स मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं और कई मशीनें भी नाकारा हो चुकी हैं, जबकि लोहे के हिस्से जंग आलूदा होने की बाइस पानी की क्वालिटी भी मुतासर हो रही है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद इस बारे में जानते हैं। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर में भी साफ पानी के हसूल के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर टर्बाइनें जो ना वो लगा दी गई है, लेकिन इनकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर जो वाटर टर्बाइनें वो बंद हो चुकी है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो खराब हो चुके हैं, टूटियां उतर चुकी हैं, जंग आलूद हो चुके हैं और फिल्टर चेंज ना होने की वजह से पानी जो साफ पानी करने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो साफ पानी मुहैया नहीं कर रहे, जिनकी वजह से लोग जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, जंग आलूद है, क्या कहेंगे आप?
اس میں ہر جگہ پہ قصور میں کہ ادھر اکثر اوقات یہ پلانٹ بند ہیں اور لوگوں کا اتنا مسئلہ ہے کہ لوگ ادھر آتے ہیں بزدن ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ ضلع انتظامیوں کو یہ چاہیے کہ ہر جگہ جس جگہ واٹر پلانٹ بند ہے اس کو کھولا جائے اور ہماری بھرپور اپیل ہے ضلع انتظامیہ سے یہ واٹر پلانٹ جس جگہ بند ہے اس کو جاری کیا جائے اور اس طرح کے لوگ شہری مسئلے یا معدے کا پرابلم اور کسی کے پرابلم سے پاک ہو جائے. جی جیسے آپ نے بات سنی ہے شہری کی، ان کا یہ کہنا ہے ضلع انتظامیہ سے وہ اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو بند پڑے ہیں، ایسی واٹر ٹربائنیں جو بند پڑی ہیں، اسے فوری طور پر ان کی مناسب دیکھ بھال کر کے ان کو چالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو صاف پانی جو ہے نا وہ مہیا ہو سکے، لوگ مختلف بیماریوں سے بچ سکیں. جی پتوکی کے نواحی علاقے ہیڈ بلوکی میں 45 سالہ خاتون 5 بچوں کی ماں نے بیماری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہر میں چھلانگ لگا دی. مقامی افراد اور ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو زندہ حالت میں نہر سے نکالا. ابتدائی طبی امداد کے بعد خاتون کو تھانہ سرائے مغل پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق پتوکی نواحی علاقے ہیڈ بلوکی میں 5 بچوں کی ماں 45 سالہ ام کلثوم نے بیماری اور ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کی. ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر نجی فیکٹری میں ملازم ہے اور گھریلو معاشی مشکلات بھی اس کی ذہنی کیفیت پر اثر انداز ہو رہی تھیں. واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال میں بھی لمپی سکن بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محکمہ لائف سٹاک کا کوئی بھی آفیسر یا ڈاکٹر جانوروں کا معائنہ کرنے یا جانوروں کو لمپی سکن کے ویکسین دینے کے لیے دیہاتی علاقوں میں آنا گوارا ہی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے کسانوں کے لاکھوں مالیت کے جانور مر گئے. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے جانوروں کو لے کر ہسپتال جاتے ہیں تو آگے سے ہمیں ڈاکٹر حضرات نہیں ملتے. مزید اس بارے میں جانتے ہیں عامر نصیر کی رپورٹ میں. پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال میں بھی لمپی سکین بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محکمہ لائف سٹاک کا کوئی بھی آفیسر یا ڈاکٹر جانور کو معائنہ کرنے یا جانور کی لمپی سکین کی ویکسین کے لیے دیہاتی علاقوں میں آنا گوارا نہیں سمجھتا. اس کی وجہ سے کسانوں کے لاکھوں مالیت کے جانور مر گئے ہیں. کسانوں کو کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے جانوروں کو لے کر ہسپتال جاتے ہیں آگے سے ہمیں ڈاکٹر حضرات نہیں ملتے. اگر ڈاکٹروں کو فون کیا جاتا ہے تو فون اٹھانا گوارا نہیں سمجھتا. جانوروں کی ویکسین نہ کروانے کی وجہ سے لاکھوں مالیت کے جانور مر گئے ہیں. محکمہ لائف سٹاک کے ملازم صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے جانوروں کو بھی ویکسین کروائی جاتی تو ہمارے جانور بھی مرنے سے بچ سکتے. محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹر ہمارے علاقوں میں آنا تو دور کی بات ہے، ہم دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں ملتے. کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ ہے کہ محکمہ لائف سٹاک کے ان آفیسر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے جو فیلڈ میں نظر نہیں آتے. کوئی نہ سرکاری ڈاکٹر آیا نہ کوئی آیا نہ کچھ، تو لمپی سکن سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بہت سارے جانور ہمارے مر چکے ہیں. 2-3 بچڑے ہمارے، گائے 4.5 لاکھ کی لی تھی وہ اسی بیماری سے متاثر ہوئی ہے. تو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے ادھر سرکاری ڈاکٹر بھیجیں، کو محکمے کا افراد بھیجیں جو ہمارے ادھر جانوروں کا احتیاط کرائیں، ہمارے سہولت ویکسین کروائی جائے. خانے وال میں بھی لمپی سکین کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے کسانوں کے لاکھوں مالیت کے جانور مر گئے ہیں، لیکن لائف سٹاک کا کوئی بھی ڈاکٹر یا آفیسر فیلڈ میں نظر نہیں آتا. کسانوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا فوری نوٹس لے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد عامر نصیر، چینل 5 نیوز، خانے وال. ملتان میں خیر کا سفر منصوبے کے تحت نادار اور مزدور طبقے کے لیے بلا معاوضہ گرم کپڑوں کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا. کمشنر عامر کریم خان نے افتتاحی تقریب میں مستحق افراد میں جیکٹس، شالیں اور جرسیاں تقسیم کی. تقریب میں ڈپٹی کمشنر، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور مخیر حضرات نے شرکت کی. ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر خیر کا سفر منصوبے کے تحت کمشنر نے کہا کہ منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انسانیت دوستی کے ویژن کو عملی جامہ پہناتا ہے اور روزانہ مستحق افراد کو بلا معاوضہ گرم کپڑے فراہم کیے جائیں گے. کمشنر کا کہنا تھا کہ منصوبے کا مقصد شہریوں کو سردیوں میں فوری ریلیف فراہم کرنا اور دہاڑی دار افراد کی آمدن بچانا ہے. شہریوں نے منصوبے کو قابل تقلید اقدام قرار دیا اور مخیر افراد کے کردار کو سراہا. برے والے
वाला में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत के असबाब के मौजू पर डॉक्टर्स की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मोहम्मद अजीम नूर की रिपोर्ट में। बुरेवाला में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर इरफान चौधरी की ज़ेरे निगरानी एक शानदार CMA सेशन मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में DHQ विहाड़ी के चीफ ENT सर्जन डॉक्टर खालिद चौधरी ने बच्चों में कान, नाक, गले के मसाइल पर तफसीली लेक्चर दिया, जबकि माहिर अतफाल डॉक्टर मसब आलम ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और बच्चों की सेहत पर इसके असरात का जामे और मालूमाती जायजा पेश किया। इस नशिस्त में बुरेवाला, विहाड़ी और मेलसी के नामवर माहिरीन अतफाल और जिला विहाड़ी के ENT सर्जन और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर हजरात ने भरपूर शिरकत की। PPA के मेंबरान का कहना था कि ऐसी इल्मी नशिस्तों से सीखने का अमल जारी रहता है, जिससे मुआलिजीन की काबिलियत में मजीद इजाफा होगा और आइंदा भी ऐसे तालीमी सेशंस के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। हमारा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 बुरेवाला। सादिकाबाद आज अपनी 90वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का पहला शहर है जहां हर साल बाकायदा तौर पर शहर की सालगिरह धूमधाम से मनाई जाती है। 18 नवंबर 1935 को नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी ने इस शहर की बुनियाद रखी थी और इस रिवायत को आज भी भरपूर अंदाज में जारी रखा जा रहा है। चीफ ऑफिसर बल्दिया ज़ोहेब खान लगारी के मुताबिक सालगिरह के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और शहर में जश्न का माहौल है। तकरीब में फूड स्टॉल्स, आर्ट गैलरी, कल्चरल स्टॉल्स और मौसीकी के प्रोग्राम शामिल होंगे। शहरी इसे ईद के बाद सबसे बड़ा त्यौहार करार देते हुए अपने अहले खाना के साथ भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं। लियाकतपुर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे से मुतालिक शदीद शिकायत सामने आ रही हैं। गौसिया कॉलोनी में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं और गटरों के ढक्कन गायब होने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। एक कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया, ताहम खुशकिस्मती से वो महफूज रहा। शहरियों का कहना है कि खुले मैनहोल्स के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। इलाका मकीनों का दावा है कि खुले मैनहोल्स मुबैना करप्शन और नाक़िस निगरानी का नतीजा है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिनाला कोर्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पानी की कमी और इसकी अहमियत के मौजू पर एक अहम सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में माहिरीन ने बारिशों के पानी और इस्तेमाल शुदा पानी को ट्रीटमेंट के बाद दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर ज़ेरे ज़मीन पानी के लेवल में इजाफे के मौसर तरीक़ेकार पर शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि संगी फाउंडेशन का रेन हार्वेस्टिंग और रेन रिचार्जिंग प्रोग्राम भी ज़ेरे गौर पेश किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि बारिश का पानी महफूज करके ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को बेहतर बनाया जा सकता है, वरना मुस्तकबिल में संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेमिनार में इस बात की भी निशानदही की गई कि पानी की किल्लत न सिर्फ इंसानों बल्कि हैवानात की जिंदगियों को भी मुतासर कर रही है। मुकर्ररीन के मुताबिक पानी की हिफाजत सुन्नत रसूल है और आज पानी बचाना आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए जरूरी है। शुरा को यह भी बताया गया कि मुल्क के कई इलाकों में आज भी इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं, जो पानी के बहरान की संगीनी को जाहिर करता है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।